morning, dear students. Today we will be discussing about the next chapter, which is called work, power and energy. The basic formula for motion we have learnt. We will make use of them to calculate the basic formation of work, power, energy equations and their applications. So let us start with the work done. So this word work done, see, work is said to be done. Work is said to be done only if by the application of a force there is a certain displacement produced in the body. Imagine करिए कि एक body हम ले लेते हैं, मान लीजिए, let us say we are taking a body and we are applying a pull force F. This is a pull force we have applied, and let us say at an angle theta we have applied the pull force. This is the angle theta. Now the body is at position A. If by the pulling, let us say the body is getting displaced to point B and the body has covered a certain displacement S. This S is the displacement. Okay, S is the displacement. We have applied a pull force F on the body, which is positioned at A. The body gets displaced to position B. Now in this case, if we want to find the work done, what should we do? In the first step is we should take the forces in the direction of the displacement, number one, right? So if I take the component of this force along the direction of this, then this will become F cos theta, right? Initially, if you remember, we have talked about it, that if this is a vector, say A, vector A, and this is an angle theta, then if we are displacing this vector here, then we will be getting A cos theta, right? In the similar pattern, I have displaced this force along this, so we have got F cos theta. Now what is F cos theta in this case is, this F cos theta is the force in direction of displacement. Force in direction of displacement. This is F cos theta. Now what is the work done therefore? Therefore the work done will be force in direction of displacement into displacement. This is the formula for work done. Force in direction of displacement into the displacement covered by the body. Now how much is the force in the direction of displacement? The force in the direction of displacement is F cos theta. So we will write it is F cos theta into S. So this is the general formula for work done. Now let us say this is the work done. Now I can write work done is equal to F S cos theta, right? This is Fs cos theta. Now this is the general formula for work done. If I use vector, so we'll write in the form of vector. In the vector form, if I want to express this work done, so I will write work done is equal to F dot S. Dot product of two vector will be, scalar product of two vector will be written as F dot S. This F is the force and this S is the displacement, and this force must be taken where? In the direction of displacement, right? So this is the general formula for work done. Now this work done, we can analyze this work done, the formula. See, we have work done is F S cos theta. Now suppose condition 1, let us say if theta is 0 degree. Theta is 0 degree means this is the body, here is the force applied, and in the same direction the displacement is produced. The force is applied in the direction where the displacement is produced, or the displacement is produced in the direction of force applied. Then the angle between them will be equal to 0 degree. Now in this case, if I take this formula here, so I will write work done is equal to F S cos 0 degree, and cos 0 degree will be equal to 1.
So we will be writing F into S. This is the work done. And as we know that bracket में लिख लेते हैं as cos 0 degree is equal to 1, and this 1 is the maximum value. This is the maximum value. So therefore I will say that this work done is maximum. You can check that. Let's see, let's review the thing. We have initially taken a body at position A. We have applied a force F on the body. It is a pull force at a certain angle theta, and this body is getting displaced from position A to position B, right? So what I have done is, I have taken the component of this force in the direction of displacements, which is equal to F cos theta, right? So this F cos theta is the force in the direction of displacement. And if I now want to write the work done, I will write work done is force in the direction of displacement into the displacement caused. So force in the direction of displacement, as we have discussed, is F cos theta into S. This is equal to work done, and we obtained a general formula of work done as F into S into cos theta. This is the general formula of work done. To discuss the special condition, I am writing that, let us say first condition, that the angle between the force and the displacement is 0. If this angle between force and displacement is 0, then the force and displacement are said to be in the same direction with an angle 0 degree between them, and we'll write this as, we'll rewrite in fact this as F, S and cos 0 degree. Cos 0 degree is equal to 1, which is the maximum value of cosine sector. So this work done will be maximum. That is, when the force is applied in the same direction of displacement, or when the body is displaced in the direction of the force applied, then the work done is said to be maximum, right? Let us talk about another part of this is also. Now let us take condition 2, and what is the condition 2 is, what is my condition 2 is, see here we will discuss, this is condition 2. Condition 2. In condition 2, what I am trying to say you is, if theta is 90 degree, theta is 90 degree means the force is applied somewhere else, but the displacement is produced like this. This type of thing can be happened. How it is? See, say this is a pulley, and say this is a body. Let us say this is a body, and let us say that we are applying a force like this on the pulley with the help of the rope, and the body is getting displaced like this. This is the direction of displacement. This is the direction of the force applied. As you can see very clearly that force and displacement are perpendicular to each other. The angle between them is 90 degree. So in this case, I will write work done is equal to F S cos 90 degree. And cos 90 degree, as you know, is 0. So therefore the work done is equal to 0. This is the minimum work done. Please check. Please check in this condition 2. What I have taken is, I have taken a body. It is connected by a rope with the help of the pulley. Here is the pulley attached. Here is the pulley attached. And I have applied a pull force on the string which is connected to the body. And by pulling this body here, by applying a force perpendicular to direction of displacement, or by applying a force horizontally, the body is getting displaced vertically like this. This is the displacement direction, and this direction and this direction are perpendicular to each other. In this case, theta will be equal to 90 degree and work done will be equal to 0. This is the minimum work done. How we can take an example? Let us say there is a coolie in the station who is carrying your baggage in his head. A coolie is positioned in the station and he is carrying your baggage in his head. So the weight of the body is like this. I am carrying a body like this. So the weight of the body is acting here, and suppose I am moving here. The force is here and the displacement is here. Therefore the angle between them is 90 degree and there will be no work done, right? And now we will take condition 3. In condition 3, I must say that if theta is 180 degree, 180 degree means, say this is the body, a force is applied here
but the displacement is produced here. How it is possible? Let us see. Let us generalize it. Let us realize it in picture. Let us say that this is a pulley and a string is attached to a body and the body is placed here. Now the same string is placed like this. This is the string. This hole is the string. This is connected to the body. Now suppose I am applying a force here. What may happen to the body? Please realize. If I pull this body force here, if I pull the rope here, the body will move here. You can see that the angle between them is 180 degree. If the angle between them is 180 degree, that means work done will be equal to Fs cos 180 degree. Cos 180 degree, as you know, is -1. So this will be equal to F into S into -1. So this work done is equal to minus Fs. This work done I can write as minus Fs. And what is this negative sign indicating you? This negative sign indicating you that the force and the displacement are in the opposite direction. So these are various conditions where we can apply the general formula. Right. Now let us apply the formula and see how a problem can be done by using this concept. Let us talk about those concepts. Now we will be taking an example. Let us say that this is the body. This is the body. It is positioned itself at A. A force is applied, say like this. This force is say 200 Newton. And the angle in which the force is applied is say 60 degree. Okay. Let by the help of this force the body is displaced to this point, and the displacement of the body is equal to say 20 meter. Let us say that the displacement is 20 meter. Now how much is the work done? So if I want to find the work done, I will write work done will be equal to F into S into cos theta. This is the formula of work done. What is F? F is 200. What is S? S is 20. What is theta? Theta is 60 degree. As we know that cos 60 degree is what? Cos 60 degree is 1 by 2. So this is cancelled. So this is 10. So this is equal to 2000. Okay. And what is the unit? Please check. This F has a unit Newton. This displacement has a unit meter. So either you can write Newton meter or you can write joule. So 2000 joule. J stands for joule. If it is the figure is coming in the figure of thousands, we can either write it 2 kilojoule, because 1 kilo is 1000, right? So by taking this 1000 in this kilo, I can adjust the unit and write only 2 kilojoule is the amount of work done. This is the minimum possible case where we discuss, where we have used the formula of the work done, right? We will take up another formula. Let us see how the formula can be applied. Now please check that, let us say we are taking a two-dimensional figure. Let us say that we are taking a two-dimensional figure like this. Say this is x and y axis. Let us imagine that a body is initially here. This is A. This has a coordinate say 3, 2. Okay. Now let us say this body is displaced to this point B. This point has coordinates say 5, 4. Let us say that these are the coordinates. Then what we do is we join this from A, and again we join the center from that is the origin from B. And let us name this origin as O. Okay. The force applied given is, let us say this force is 20 I cap. This is the force applied. This is the applied force. This is given to you. In the question it will be given to you that on a body so much amount of force is applied, and the body is displaced from A to B, whose position vectors are coordinates are 3, 2 and 5, 4. Okay. So first of all
will be taking that how much is this one, this OA. Please see, in this case OA will be equal to how much? This OA will be, check that, if I draw a perpendicular from here, then this is something I have got on x-axis, and please see that this is x coordinate of the point A. X coordinate is 3. So along x-axis I can write 3I cap. Now again, this is the y coordinate of point A, and along y-axis we will write 2j cap. Okay, so from this triangle you can see that this vector will be equal to this vector plus this vector, right? So I can say OA vector will be equal to, this OA vector will be equal to 3I cap plus 2j cap, right? So you write 3I cap and 2j cap. This is OA, this is the position vector of A. Now similarly, if I calculate OB, how much is OB? Please again see that for writing OB component I will have to draw a perpendicular here. So this is a perpendicular I am drawing, and you can see that now the x component is so much. This is the x component, and this much is how much? This is x component is 5. So I will write here as 5I cap. This is 5I cap, and this is along y axis, and the coordinate is 4. So I will write this as 4j cap. So in the similar manner, in the bigger triangle, now we take OB vector is equal to 5I cap plus 4j cap. So this is 5I cap plus 4j cap. Okay. Now therefore I have anyhow got these position vectors. Here please remember that OA and OB are position vector of A and B, एंड आपको बताया गया है कि बॉडी A से B तक डिस्प्लेस हुई है। इसका मतलब ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये आपकी है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब आप देखिए इस वाली ट्राइंगल को देखिएगा प्लीज। इस ट्राइंगल में OA वेक्टर की हेड और OB वेक्टर की टेल मर्ज कर रही है, तो जिसकी हेड और टेल मर्ज कर जाए हम उनको ऐड कर देते हैं। तो विल राइट OA प्लस AB, देयरफॉर displacement vector will be equal to OA plus OB, OA plus OB. We'll write in which triangle? It is in triangle OAB. Please see again. In this triangle, the head of A is merging with the tail of B, and therefore we have added them. OA plus AB will be equal to OB. Will be equal to OA plus AB is equal to OB. Now from this figure I can get AB vector is equal to OB vector minus OA vector, right? And how much is OB? Please see, OB is 5I plus 4j. So this is 5I cap plus 4j cap minus how much is OA? OA is 3I plus 2j. So this is 3I plus 2j. Now simplify it. 5I minus 3I will be equal to 2I. 4j minus 2j will be equal to 2j. So this is the final displacement vector AB. AB is the displacement vector. We have got the displacement vector so much. Now please see that the force applied is given this much. This is the applied force. So therefore finally the work done is equal to F dot S in the form of vectors. What is F? F is 20I cap. Here is the force 20I cap. What is the displacement vector? It is 2I cap and 2j cap, right? If I open the bracket, I will write 20 into 2, I cap dot I cap.
and then 20 into 2, 20 into 2, and he'll write I cap and j cap, I cap and j cap, and we know I cap dot I cap or j cap dot j cap or k cap dot k cap, this is equal to 1. Same dot same equal to 1, and different dot different is equal to 0, that is I dot j or j dot k or k dot I, they are equal to 0. So from this situation you can see that this is different dot different, I dot j, so this part will be equal to 0. This is same dot same, and this is equal to 1. So this is 1, 20 into 2, 40. So we'll write this is 40 units. This is the amount of work done. Right? See that. In this case, there was no angle given. But the position vectors were given. The position coordinates were given. So if this is the case, you please do it in the same way. First of all, you join those positions from the origin, and then you try to find how much is this and how much is this. How you can find? We will simply draw a perpendicular. So the first coordinate is 3, so I am getting along x axis I am getting 3 I cap, along y axis I am getting 2 j cap. Similarly, तो अगर ये 3 I cap है बच्चे और ये 2 j cap है, तो इसका मतलब ये वाली हुई 3 I cap और 2 j cap. इसी तरह अगर इसकी पोजीशन को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये वाली चीज मुझे x एक्सिस की कोऑर्डिनेट मिली और ये वाली चीज मुझे y एक्सिस की कोऑर्डिनेट मिली, तो अब मैं इजीली कह सकता हूं कि ये वाली वेक्टर होगी 5i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब इस बड़ी वाली ट्राइंगल में मुझे इसका और इसका पता चल गया। ओके, तो अगर इन दोनों चीजों का मुझे पता चल गया तो अब मैं देखूंगा कि जिस बड़ी वाली ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं उसमें किस किस वेक्टर की हेड और टेल मर्ज हो रही है। तो देखिए OA की हेड और AB की टेल मर्ज हो रही है, तो जिसकी इस सिचुएशन में होगी हम उसको ऐड कर देंगे। मतलब हम बोलेंगे OA प्लस AB और फिर उसको तीसरी वाली साइड के बराबर कर देंगे। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, और फिर AB इज इक्वल टू इसको इधर ले जाइए OB माइनस OA। अब इनकी वैल्यूज लिख के इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपने फॉर्मूले पे आ जाइए। सो वर्क डन इज F डॉट S। अब F की वैल्यू आपको गिवन है 20i कैप, दिस इज द 20i कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर आपने निकाल ली है सो मच। इनको डॉट प्रोडक्ट करिए, 20 इंटू 20 करिएगा तो i कैप इंटू i कैप आएगी। इसके बाद 20 इंटू 2 करिएगा तो i कैप एंड j कैप आएगी। 20 इंटू 2 i कैप, 20 इंटू 2 i कैप j कैप। और अब फॉर्मूला याद रखिएगा कि सेम डॉट सेम हो तो 1 लिखिए, डिफरेंट डॉट डिफरेंट हो तो 0 लिखिए। राइट, तो यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन थी ये वाली डिफरेंट डॉट डिफरेंट थी, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया और सेम डॉट सेम को हमने 1 कर दिया। तो दिस इज 40 यूनिट ऑफ वर्क डन इज ऑब्टेन्ड। राइट, दिस इज द केस हाउ वी कैलकुलेट द वर्क। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल आल्सो। आइए अगर हम अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चले, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा। देखिए आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस F1 2i कैप, F2 3i कैप माइनस 4j कैप, F3 5j कैप। मान लीजिए ये फोर्सेस हैं, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, मान लीजिए ऐसा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर ऐसा है तो अब हमसे कह रहा है, अगर वो वर्क डन पूछा कि मान लीजिए बताइए कि वर्क डन कितना, अब आपसे पूछ रहा बताइए कि वर्क डन कितना, कैलकुलेट वर्क डन। तब आप क्या करें, सिंपली आप क्या करें, देखिए आप लिखिएगा वर्क डन इज F डॉट S, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखिए। अब ये F क्या है, ये F इनकी समेशन हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो यहाँ लिखिएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। Because they are vector, you must place an arrow sign over them.
डॉट एस। अब उनकी वैल्यूज लिख दीजिए। सो दिस इज 2i कैप, दिस इज 3i कैप माइनस 4j कैप, दिस इज 5j कैप, ये सारा लिख दिया आपने। डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितनी है आपकी, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये भी लिख दीजिए, i कैप, j कैप और 2k कैप, ये लिख दीजिए। अब इसको ओपन करिए, देखिए 2i कैप डॉट i कैप, पहली टर्म आ गई, ठीक है। दूसरी टर्म में क्या आएगी बच्चे, 2i कैप डॉट j कैप, राइट, इसको भी लिख लीजिए 2i कैप डॉट j कैप। तीसरी टर्म में क्या आएगी, 2i कैप डॉट 2k कैप, 2i कैप डॉट 2k कैप। नेक्स्ट 3i कैप डॉट i कैप, ठीक है, 3j है, दिस इज 3i कैप, राइट। सो यू विल राइट 3i कैप डॉट i कैप, then 3i cap dot j cap, 3i cap dot j cap, then 3i cap dot 2k cap, 3i cap dot 2k cap, then next term 4j cap and i cap, माइनस है फिर ये पहले माइनस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4j cap dot i cap, then again minus 4j cap and j cap, and then 4j cap and 2k cap, minus 4j cap and 2k cap, and the next term again, next term is 5j cap and I cap, 5j cap and I cap, and then 5j cap and j cap, 5j cap and j cap, and then 5j cap and 2k cap, so 5j cap and 2k cap। एक बार जस्ट आप चेक करें विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। मैं चाहता तो इसको सॉल्व कर लेता, पर मैंने सॉल्व नहीं की, मैंने आपके लिए क्या किया, एज इट इज खोल दिया ब्रैकेट पे, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आए, फिर इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो अब ये टर्म आए, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, ये टर्म आएंगे, और फिर इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए, ये टर्म आएंगे, राइट। अब हमने सीखा है कि सेम डॉट सेम 1 होती है, डिफरेंट डॉट डिफरेंट 0 होती है, राइट। तो जहां भी डिफरेंट डॉट डिफरेंट देखिए, ये है 0, ये भी देखिए 0, ये भी देखिए 0, ये भी डिफरेंट है 0, ये भी डिफरेंट है 0, ये सेम, इसको छोड़िए, ये भी डिफरेंट है देखिए, राइट, दिस इज 0। सिमिलरली ये सेम, ये भी डिफरेंट है, इसको 0, ये सेम है, इसको छोड़िए, ये डिफरेंट है, इसको बोलिए 0। पहले डिफरेंट और डिफरेंट वालों को 0 कर दीजिए सबसे पहले। अब आप अपने कैलकुलेशन में आइए, देखिए 2 i कैप 1 होगी तो हम बोलेंगे 2, 3i कैप तो ये हो गई 1, इसका मतलब हो गया 3। देन नेक्स्ट टर्म 4j कैप माइनस में है, माइनस 4, देन 5j कैप प्लस में है, राइट 5। So now you calculate, this is 5 and 5, 10 minus 4, 10 minus 4 is 6 units. Generally, without actually solving them, हम चाहें तो इसको यहाँ पर ओपन भी करके लिख सकते हैं, पर हमें ऐसे अगर जरूरत ना पड़े तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। Please see that this is the thing, this is the way we proceed for finding the work done. Okay? आइए इसको हटा देता हूँ मैं, right? आइए now नेक्स्ट थिंग, थोड़ी सी हायर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक पेंडुलम है जो यहां पर है, लेट अस से दैट हियर इज द पेंडुलम। अब मैं इस पेंडुलम पे ये फोर्स लगाता हूं, से मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स। मान लीजिए ये जो पेंडुलम है इसकी मास है सपोज 100 ग्राम, ओके। तो अगर मैं सोच के देखिए, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, से दिस इज द पेंडुलम एंड आई एम अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, द पेंडुलम विल मूव लाइक दिस, ओके। सो इट विल डिस्प्लेस हियर, it will displace here, here is the force, this is the same force here, okay.
और अगर इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको गिवन है 20 मीटर, मान लीजिए ये 20 मीटर है। अब अगर इस केस में मैं फोर्सेस के डायग्राम को ड्रॉ करूं कि फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो इस जगह पर या इस जगह पर फोर्स आपने ये लगाई है। अच्छा, ये जो बॉडी है इसकी मास 100 ग्राम है ना, तो इसकी वेट कहां पर एक्ट करेगी बच्चे? वेट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी इधर की तरफ वेट एक्ट करेगी। एंड हाउ मच इज द वेट? वेट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। एंड रिमेंबर दैट जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो सारी चीजें एसआई यूनिट में हो जाए। जैसे मास ग्राम में है बच्चे तो पहले उसको केजी कर लीजिए, तो आप बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, दिस इज केजी इंटू जी की वैल्यू। फॉर सिंप्लीफिकेशन विल बी टेकिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये हो गई 0.1 और ये 10 इससे कट गया, सो दिस बिकम्स how much? This is becoming 1 Newton is the weight. 1 Newton is the weight acting downward. और फोर्स हॉरिजॉन्टल वाली आपने कितनी लगाई है? 10 न्यूटन। अब मान लीजिए आपको बोले वो कि भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, इफ द पेंडुलम इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द वर्टिकल, तो बताइए वर्क डन ड्यू टू बोथ फोर्सेस क्या हुई? फाइंड, ऐसे उसने बोला फाइंड टोटल वर्क डन। मान लीजिए ये आपसे पूछे तो टोटल वर्क डन कैसे करिए? देखिए, तो टोटल वर्क डन में दिस टोटल विल बी वर्क ड्यू टू फोर्स F एंड देन वर्क ड्यू टू द वेट W, दैट इज वर्क ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अब वर्क ड्यू टू फोर्स F लिखने के लिए आप क्या करें, कैसे निकलेगी वर्क ड्यू टू फोर्स F? तो देखिए फोर्स F के लिए आपको लिखना पड़ेगा ना, ये फोर्स ये वाला और डिस्प्लेसमेंट इसी के डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में आप चेक करें इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बॉडी पहले यहां थी, अब बॉडी यहां आ गई, तो हॉरिजॉन्टली बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी होगी अगर हम जानना चाहें तो कैसे करिएगा? देखिए ये कितनी है आपकी 20 मीटर। ये एंगल कितनी है बच्चे? दिस इज 30 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज 60, सो दिस एंगल इज 90, सो दिस एंगल मस्ट बी 30। तो अगर ये 20 मीटर होती, अगर ये 20 मीटर है तो इसका कंपोनेंट ये वाला कितना हो गया बच्चे? दिस इज 20 cos 30, दिस इज 20 cos 30, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो फॉर दिस WF हाउ कैन यू फाइंड? दिस इज फोर्स into horizontal displacement SH. SH is the horizontal displacement. This is I am writing SH, that is horizontal displacement. This is the horizontal displacement. Okay. Now plus how much is the work due to gravity? Say work due to gravity में देखिए फोर्स कहाँ है? इधर की तरफ कितनी है? 1 न्यूटन। This is force due to gravity. This is horizontal force. This is gravitational force and gravitational displacement. इस तरह से लिखिए। अब आप चेक करिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है आपके पास, और ये क्योंकि वेक्टर है, प्लीज रिमेंबर टू पुट द वेक्टर साइन ओवर देम। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने कितनी लगाई? कितनी लगाई बोलिए? 10 न्यूटन लगाई, तो इसको क्या लिखिएगा? 10। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी इसी डायरेक्शन में कितनी हुई? 20 cos 30, तो यहाँ लिखिए 20 इंटू 20 cos 30। और हॉरिजॉन्टल फोर्स और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितनी? 0 डिग्री, दैट इज FS cos थीटा, दैट वी हैव रिटन। ठीक है, आइए नेक्स्ट ग्रेविटी फोर्स की बात करिए। देखिए ग्रेविटी फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन, दिस इज 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वाली कितनी होगी बच्चे? देखिए प्लीज, ये बॉडी यहां थी, अब ये बॉडी यहां आ गई, तो वर्टिकली यू कैन सी दैट सो मच इज द डिस्प्लेसमेंट, इतनी हुई है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर ये 20 है बच्चे, इफ दिस इज 20, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये वाली बताइए, इसको यहां ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? 20 cos 60, इस एंगल का cos, ये वाली चीज कितनी हो गई? 20 cos 60।
और ये पूरी कितनी थी हमारे पास 20, ये जो पूरी थी ये वाली पूरी देखिए, दिस होल इज हाउ मच, दिस इज 20, और ये सिर्फ कितनी है ये वाली, दिस इज 20 cos 60। तो बताइए फिर ये वाली कितनी हुई, क्या लिखूं मैं, इसको लिखूं दिस माइनस दिस। प्लीज सी, मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखूं, ये माइनस ये, दैट इज 20 माइनस 20 cos 60। तो यहां पर मैं लिखूं 20 माइनस 20 cos 60। और देखिएगा प्लीज कि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रही है, तो एंगल कितने हो गए इनके बीच में, 180 डिग्री। सो आई विल राइट cos 180 डिग्री। ओके, चेक कर लीजिए। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज 10 into 20 200, cos 30 is √3/2, so this is √3/2 plus 1 into 20, say this is 20, minus 20 cos 60 is 1/2, so we'll write 20 into 1/2, and cos 180 degree is -1. Okay, now you see how much is this, this is 100√3, ये काट दीजिए, this is 100√3, and bring this minus sign here, minus, this is cancelled, this is 10, 20 minus 10 will be 10, so this is 10. How much is the value of √3? The value of √3 is 1.732. 1.732 minus 10. How much this we can write? This is, we can write 173.2 minus 10. So this is 163.2 joule is the amount of work done. Please see in this diagram, हमारी बॉडी पहले यहाँ थी, हमने फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल वाली और बॉडी को यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। हमारी बॉडी पहले यहाँ थी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, बॉडी को हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, एंगल हो गई 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। मास ऑफ द बॉडी आपको गिवन है, ठीक है, और वेट ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करिए, मतलब डाउनवर्ड फोर्स निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी देख लीजिए, और दोनों डिस्प्लेसमेंट को साइमल्टेनियसली यूज करिए और अपने फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू एंड फाइंड द वर्क डन। आइए, ठीक है। सो नाउ दिस वाज द वन ऑफ द बिगर केस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा डिटेल यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें, देखिए आइए, अगर हम यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें या हम कहें एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, अगर हम एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें, देखिए हमने वर्क डन लिखा है FS cos थीटा, ये हमने लिखा है। अगर एसआई यूनिट की बात करूं मैं, तो फोर्स की यूनिट हो गई बच्चे न्यूटन, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को आप बोलिए जूल। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट, इसी यूनिट में हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए, से सीजीएस यूनिट की बात की जाए, तब ये फोर्स को हम लिखते हैं किसमें है, डाइन्स में, और डिस्प्लेसमेंट को किसमें हम लिखते हैं, सेंटीमीटर में। और कॉस थीटा, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर को अब आप लिखेंगे अर्ग्स, ये उसकी सीजीएस यूनिट हो गई, राइट। तो ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन हो गई बच्चे, ये सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन हो गई, राइट। दिस आर वेरियस थिंग दैट वी कैन यूज इन फाइंडिंग द वर्क डन, राइट। आइए अब हम थोड़ी सी एनर्जी की भी बात करें कि एनर्जी क्या क्या होती है। इसको हटा देता हूं मैं। आइए अब देखिए कि अगर हम सबसे पहले पावर की बात कर लें, एनर्जी से पहले, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड। पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया।
समझ आया? जैसे मान लीजिए 6 जूल वर्क किया हमने 2 घंटे में, तो वर्क डन पर आवर कितना किया हमने? 3। समझ आया? दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन। तो अगर रेट ऑफ वर्क डन की बात कर रहा हूं मैं, पावर की बात कर रहा हूं, पावर को हम लिखेंगे लेटर P से, एंड रेट ऑफ वर्क डन का मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम को हमने क्या बोल दिया? पावर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं एनर्जी स्पेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी हमारी हो गई पावर, राइट। तो अगर अब देखिए, अगर इस वर्क डन को मैं थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखता हूं बच्चे? F.S, ऐसे लिखता हूं वर्क डन, F.S, और टाइम को लिख लीजिए T, राइट। अब आइए देखिए, तो अगर पावर की बात करूं तो मैं बोलूं F डॉट, अगर इसकी बात करूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या लिखते हो आप? वेलोसिटी, इसको लिखो V। सो अब देखिए ये हो गया आपका पावर, फोर्स और वेलोसिटी की रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, पावर एंड वेलोसिटी। ठीक है। अब इसका यूज कैसे किया जाए, या पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर को बच्चे आप लिख रहे हो वर्क डन बाय टाइम, राइट। अच्छा, वर्क डन की एसआई यूनिट आपने क्या बोली थी? जूल। टाइम की क्या लिखूं? सेकेंड। अभी हमने डिस्कस किया था ना, वर्क डन की एसआई यूनिट थी जूल। सो जूल पर सेकेंड, इसको बोलिएगा वॉट। यू विल राइट इट W। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। लेकिन मान लीजिए अगर आप सीजीएस यूनिट में हैं, सपोज सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, अगर हम इसकी बात करें तो पावर को आप लिख रहे हैं वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को किस में यूनिट में लिखते हो आप? सीजीएस में आप लिखते हो अर्क्स डिवाइड बाय सेकंड। ये उसकी छोटी यूनिट हो गई, राइट। तो अगर हम स्टिल थोड़ी हायर यूनिट की बात करें, हायर यूनिट इज किलोवाट। इसको आप लिखते हैं ऐसे KW, एंड प्लीज रिमेंबर दैट 1 KW इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 KW इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है। अच्छा, अगर उसकी हायर यूनिट की भी और बात करें, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज की भी बात करें, तो वो क्या करें, कैसे करें, हम एनर्जी में डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। आइए देख लीजिए, प्लीज चेक करिए। ये उसका जनरल फॉर्मूला था, ये उसकी एसआई यूनिट थी, ये उसकी सीजीएस यूनिट थी, और ये उसकी हायर यूनिट है। इससे भी हायर यूनिट हो सकती है जिसको आप बोलते हो मेगावाट। मेगावाट, इसको आप लिखते हो MW। प्लीज रिमेंबर दैट 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, या इसको लिखिए 10 टू द पावर 6, एंड 1 मेगावाट इज 1000 किलोवाट। और किलो के बदले में 10 की पावर 3 एक बार और आ जाएगी ना, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 मिलकर ये कितनी हो गई? 10 की पावर 6। दैट इज 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, ये उसकी हायर यूनिट है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। आइए देखिए, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम पावर का फॉर्मूला यूज करके कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जाए। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको बोलूं, पहले तो आप देखिएगा कि पावर को आपने लिखा है F.V। एक फॉर्मूला ये लिखा है आपने, दूसरा फॉर्मूला लिखा है पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, या आपने लिखा है एनर्जी स्पेंट अपॉन टाइम। ये हमने कुछ जनरल फॉर्मूले बनाए हैं वर्क डन, आई मीन पावर के। तो अगर हम इसको यूज करना चाहें, अब हम कैसे करें, देखिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लूं, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, the body is subjected to a force F is equal to 20I cap plus 30J cap। मान लीजिए ये आपको गिवन है, and the velocity
ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू से 3i माइनस 4j, ये आपको गिवन है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और उसने बोला फाइंड द पावर इन्वॉल्व, फाइंड द पावर इन्वॉल्व इन इट। मान लीजिए कुछ ऐसा पूछा हमसे, तो अब आप जनरल फॉर्मूला में देखिए, क्योंकि चीजें आपको वेक्टर के फॉर्म में गिवन है तो फॉर्मूला आप ये वाला मत लगाइए, फॉर्मूला आप ये वाला लगाइए, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपसे बोला था कि एरो लगाइए, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो। तो डायरेक्टली आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करिए, आप लिखिए पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। फोर्स कितनी है जी? 20i कैप और 30j कैप डॉट वी, वी कितनी है? 3i माइनस 4j, सो 3i माइनस 4j, ये कर दीजिए। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया था, 20i कैप इंटू 3i कैप, पहला टर्म आ गया आपका। फिर 20i कैप माइनस 4j कैप प्लस 20i कैप माइनस 4j कैप। फिर नेक्स्ट टर्म 30j कैप माइनस 3i इंटू 3i कैप, 30j कैप इंटू 3i कैप, एंड देन अगेन 30j कैप इंटू हाउ मच? दिस इज माइनस 4j कैप, राइट। अब एक बार चेक करिए, मैंने सिंपली क्या किया, उनकी वैल्यूज लिख दी, अब ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये डॉट ये किया, फिर ये डॉट ये किया, फिर ये डॉट ये किया, एंड देन ये डॉट ये किया, 4 टर्म बने। अब आप गौर से देखिएगा प्लीज कि आई डॉट जे डिफरेंट डॉट डिफरेंट है ना, ये मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंट डॉट डिफरेंट हो उसको स्ट्रेट अवे 0 कर दीजिए। इसको भी, ये वाले टर्म में भी डिफरेंट डॉट डिफरेंट है, इसको भी आप 0 कर दीजिए। 2 टर्म 0 हो गए आपके। अब ये कितनी हो गई? 60, आई कैप हो गई 1, एंड हियर 30 इंटू 4 इज माइनस 120, और जे कैप हो गई 1, तो ये कितनी हो गई? Therefore, this must be equal to minus 60 watt. माइनस का मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और पता चले कि किस तरह से हम करते हैं इसको। देखिए आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दिस इज ए बॉडी, this is initially at rest, mass of the body is say 2 kg, okay. Let us say that in time t is equal to 4 सेकेंड इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई से 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई इतनी, ठीक है। तो अब हमें अगर निकालना हो कि पावर कितनी लग रही थी बॉडी में, या पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी कितनी थी जब उसकी वेलोसिटी ये थी, तो अगर वो क्वेश्चन बोले फाइंड पावर यूटिलाइज्ड व्हेन वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर कुछ ऐसा हो तो देखिए पावर के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितना वर्क डन हुआ और कितने देर में हुआ। वर्क डन को आप बोलते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, तो लेकिन फोर्स भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, राइट। इस केस में तो हम क्या करेंगे, पहले वो चीजें निकालेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तभी तो वर्क डन निकलेगा और तभी पावर निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बाय यूजिंग थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। आप लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। हाउ मच इज v? v इज 0, सॉरी v इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच इज u? u इज 0, ठीक है। हाउ मच इज a? दिस आई डोंट नो।
How much is displacement? This is also I don't know. So let us write 2as. So in this case 2as is equal to 25. That means as is equal to 12.5. ये आपकी पहली इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सीलरेशन हुई कितनी। अगेन बाय यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हम ये यूज करें तो v कितनी है आपकी 5, u कितनी है आपकी 0, a आपको पता नहीं है और t कितना है 4। तो देखिए इस इक्वेशन से आपने a की वैल्यू निकाल ली 5/4, ये a आ गया। जैसे ही a आ गया आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करें, तो जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लिखेंगे 5/4 इंटू एस, दिस इक्वल टू 12.5। तो यहां से बच्चे s भी आ जाएगी आपकी, s इज 12.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये आपकी s की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 की टेबल में 5 2 जा 10 करें, पॉइंट लगाएं एंड 5 5 जा 25 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 मतलब ये कितनी हो जाएगी 10, 2.5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 10, सो दिस इक्वल टू 10, s is 10 मीटर, एक्सेलरेशन इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें हमने निकाल दी। अब हम देखना चाहते हैं कि फोर्स कितना लगा। ऑल्सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो व्हाट इज m? m is the mass is given 2 kg. What is a? You have calculated a is 5/4. So इसको 5/4 लिखिए, कैंसिल करिए, so this is 5/2, so this is 2.5 न्यूटन। अब देखिए हमने फोर्स भी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ली, एक्सीलरेशन भी निकाल ली। अब हमें चाहिए क्या चीज? पावर। तो देयरफॉर पावर इज वर्क डन बाय टाइम। हाउ मच इज द वर्क डन? वर्क डन इज F(s) by t। हाउ मच इज F इज, ये आपने निकाल लिया 2.5। हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला कितना 10। हाउ मच इज टाइम? टाइम आपको गिवन है कितना 4, राइट। सो इसको कैंसिल करिए, ये कितनी हो गई 2.5। 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6.25। सो दिस मच ऑफ वॉट ऑफ पावर इज यूटिलाइज्ड। प्लीज चेक। इस क्वेश्चन में हमने यहां से शुरू किया था बच्चे, यहां से शुरू किया था, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, मास थी, रेस्ट पे थी बॉडी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी गिवन थी, हमें पावर यूटिलाइज के बारे में पूछा था उसने। तो पहले हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया, a इंटू एस का रिलेशन आया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, वहां से a निकाला। जैसे ही a आया हमने फिर इसका यूज किया, यहां से यहां इसका यूज किया और हमने इसमें से s निकाल दिया। और जब s निकाल दिया फिर हमने f निकाला, f इज इक्वल टू m इंटू a से f निकाला। और फिर फाइनली हमने पावर का फॉर्मूला लिखा, वर्क डन बाय टाइम, दैट इज F.s बाई टी। और फिर f और s और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड हमने इस तरह से उसका पावर निकाल दिया, राइट। दिस मच इज द थिंग अबाउट वर्क एंड पावर। In the next segment we will be talking about the energy. Thank you so much.